آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مواصلاتی خدمات کے دائرے کو وسیع کرنے پر دیا زور۔ سڑک شاہراہوں اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نے سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بحالی کے سلسلے میں اقدامات کا لیا جائزہ۔ مرکزی وزیر داخلہ کا منشیات کے اسمگلروں کو بھارتی قوانین کے دائرے میں لانے پر زور۔ ڈرگ فری انڈیا مہم آج اختتام پذیر۔ اور صحت و سماجی بہبود کی وزیر نے کولگام میں بجلی اور جل شکتی کے وزیر نے حبہ کدل میں لیا پینے کے پانی کی سپلائی کا جائزہ۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے افسروں کی ایک میٹنگ میں جموں کشمیر میں مواصلاتی اور ڈیجیٹل رابطہ کاری کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے درکار اقدامات کا جائزہ لیا، تاکہ اس طرح کی خدمات کو دور افتادہ علاقوں کے ساتھ ساتھ ڈارک زونز اور ریلوے ٹنلوں کے اندر بھی وسیع کیا جا سکے۔ مواصلات کو ترقی، مؤثر حکمرانی، معیاری تعلیم، قابل رسائی، طبی نگہداشت، فعال سیاحت اور عوامی بہبود کے لیے نہایت ضروری قرار دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے سب کے لیے یکساں طور پر موبائل اور انٹرنیٹ خدمات تک رسائی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ میٹنگ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور دیگر سینئر حکام کے علاوہ BSNL کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی پہل پر سڑک شاہراہوں اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بحالی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں قومی شاہراہ NH 44 کو فوری طور پر مکمل طور سے بحال کرنے کی ضرورت اجاگر کی گئی، تاکہ میوہ بردار گاڑیوں کے ساتھ ساتھ لازمی اشیاء کی بلا خلل ترسیل یقینی بنائی جا سکے۔ عمر عبداللہ نے شاہراہ پر سفر کرنے والوں اور کسانوں کی مشکلات کو دور کرنے کا اپنی حکومت کا عزم دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ کی بحالی کے لیے کچھ ہدایات جاری کی گئیں جن پر جلد سے جلد عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ٹرکوں کی آواجائی میں مزید کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ نے مشہور سیاحتی مقامات پر بھیڑ کو کم کرنے اور مہم جو اور ثقافتی سیاحت کے بارے میں سری نگر میں سسٹینیبل ٹورزم اور لوکل اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ ادھر PDP لیڈر التجا مفتی نے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کر کے انہیں جموں کشمیر میں سیب کی صنعت کو نیشنل ہائی وے کے بند رہنے کے نتیجے میں پہنچے شدید نقصان کے بارے میں آگاہ کیا۔ موصوفہ نے شاہراہ کے بند رہنے کی وجہ سے اس صنعت سے وابستہ کسانوں اور تاجروں کی پریشانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے لیفٹننٹ گورنر سے ہائی وے کو جلد بحال کرنے کی استدعا کی۔ پردیش BJP کے سینئر لیڈر اور سابق صدر رویندر رینا نے بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا اور جموں کشمیر انتظامیہ کے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ قومی شاہراہ کو جلد بحال کریں، کیونکہ میوہ گاڑیوں کی آواجائی مسدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہزاروں کروڑوں روپے مالیت کے سیب گاڑیوں میں لوڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن شاہراہ کے بند رہنے سے یہ سب کچھ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ ادھر پردیش کانگریس صدر طارق احمد کرار نے سینئر پارٹی لیڈروں اور پارٹی کے ضلع صدور اور کوارڈینیٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے سری نگر جموں قومی شاہراہ کے بند رہنے اور حالیہ بارشوں کے بعد میوہ صنعت سے وابستہ افراد کو ہوئے نقصان اور اس حوالے سے مختلف اضلاع کے موجودہ صورتحال سے متعلق فیڈ بیک حاصل کیا۔ ڈرگ فری انڈیا کے تحت ملک بھر میں چلائی جا رہی منشیات مخالف مہم آج اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اس مہم کے دوران پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کو بھی منشیات سے پاک کرنے کے مقصد سے منشیات کے خلاف کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور مختلف اضلاع میں بیداری پروگرام اور میٹنگیں منعقد کی گئیں۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار بھارت کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے عہد بند ہے۔ نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کی دوسری قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہماری یوا پیڑھی کو ڈرگ کے دوشن سے بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی مہان راجیہ کی سنکلپنا، اس کی نیو اس دیش کی یوا پیڑھی ہوتی ہے۔ اگر ہماری آنے والی نسلیں ہی کھوکھلی ہو جائے گی تو دیش راستے سے بھٹک جائے گا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام، مجھے وشواس ہے کہ یہ آندولن ہمارے دیش کو نشہ مکت بنانے کے ہمارے سنکلپ کو مضبوط کرے گا۔ سے نو ٹو ڈرگس۔
जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में वादी के एक ड्रामा निगार शेख मोहम्मद हनीफ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशा आजकल हमारे घरों, हमारे समाज और हमारे माशरे के लिए एक बहुत ही तशवीशनाक परेशानी बन रही है। हम देख रहे हैं कि अक्सर नौजवान नशे की बुरी आदत में इस तरह फंसे हुए हैं कि घरों के घर तबाही के दहाने पर पहुंचे हुए हैं। इन नौजवानों के वालिदैन इस परेशानी और मुसीबत के बाइस बेबस और हमेशा टेंशन में पाए जाते हैं। आखिर ये नौजवान नशे की आदत कब तक अपने वालिदैन, रिश्तेदार, समाज और अपने मुल्क को परेशानी के बाइस बनेंगे। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जिला कोलगाम में बिजली के मंजरनामे का जायजा लिया। मीटिंग में कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद शाह और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने महकमे के अफसरों के साथ एक मीटिंग करके हल्का हबकदल और मुल्का जात में पानी की सप्लाई में दरपेश चैलेंजों का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने आवाम के लिए पानी की बिलाखलल तरसील यकीनी बनाने के लिए दायमी और देर पा इक़दाम करने की ज़रूरत उजागर की। आज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का बैनुल-अक़वामी दिन है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की ज़ेर निगरानी काम करने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शोबे कार्डियोलॉजी के सरबराह और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मोहिउद्दीन ने बताया, आज साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, बाकी कंट्रीज में वबाई सूरत हाल है। मेजर हार्ट अटैक टिपिकल प्रेजेंटेशन है चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स, पैल्पिटेशंस एंड एप्रीहेंशन। इन पेशेंट्स को इमीडिएटली कैथ लैब में लिया जाता है। कैथ लैब में we put some wires in the heart, ballooning, stenting and the person gets saved. इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अब इसका और एक पैरेलल ट्रीटमेंट था थ्रोम्बोलिसिस, जिसको क्लॉट बस्टर बोलते हैं, जिसकी वजह से we can dissolve the clot. But the superior form of therapy is the primary angioplasty. We will be able to help this patient in a dramatic fashion. मैं कहता हूँ कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एक ब्रेक थ्रू है हार्ट अटैक पेशेंट्स को सेव करने में। मरकजी सरकार ने पिछले 11 बरसों के दौरान आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें और बेदारी प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनके ज़मीनी सतह पर समर आवर नताइज बरामद हो रहे हैं। सोलर रूफ टॉप्स की तनसीब से लेकर सब्ज़ तवानाई तक भारत क्लीन एनर्जी के शोबे में भी लगातार हौसला अफजा मंजिलें तय कर रहा है, जहाँ न सिर्फ कार्बन का फुटप्रिंट कम हो रहा है बल्कि ग्रीन जॉब्स भी पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से पेश है न्यूज़ डेस्क की ये तफसीली रिपोर्ट। भारत में तवानाई के सफर ने पिछली एक दहाई के दौरान काबिल कदर मनाजिल तय किए हैं। भारत तवानाई के शोबे में मुस्तकबिल में खुद कफील बनने की राह पर रवां दवा है। क्लीन एनर्जी न सिर्फ कार्बन के इखराज को कम करती है बल्कि इससे ग्रीन जॉब्स भी वजूद में आ रहे हैं। हंसलपुर गुजरात में गुज़िश्ता माह एक तकरीब पर ग्रीन मोबिलिटी मुहिम की शुरुआत करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी आलमी मरकज की हैसियत से भारत के मुस्तकबिल का तयन करेंगी। ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। मार्च 2014 से जून 2025 तक काबिल तजदीद तवानाई की वुसअत में 3 गुना इजाफा हुआ है और ये 226.8 गीगावाट तक पहुंच गई है। सोलर पावर की जनरेशन 1,08,000 गीगावाट आवर तक पहुंच गई है। इस तरह भारत जापान से आगे निकलकर सोलर एनर्जी की पैदावार में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। इस ज़मन में मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों की कामयाब अमल आवरी जारी है। एक शहरी असिन याशी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के फवाइद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, अब फायदे तो इसे है कि बिजली की हमारी बचत हुई। जितने लोग हमसे मिलते हैं, हमारे मित्र यार या कॉलोनी के, मैं सबसे कहता हूँ कि ये लगाइए, बहुत अच्छी चीज है और कई लोग लगाए भी। ये बात काबिल जिक्र है कि भारत माहौलियात की पाकीज़गी में नए अबवाब रकम कर रहा है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के लिए मैं सैयद मुबशिर रुफाई। सामाइन सेवा पर्व के मौजू से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करता एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 9:30 बजे हमारे यहाँ से नशर किया जाएगा। प्रोग्राम के मेहमान स्कॉस कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई होंगे। उनके साथ हम कलाम होंगे शोबे खबर के सरबराह तारिक अराथर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में ओजोन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन ज़मीन पर ज़िंदगी की हिफाजत करने में ओजोन की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जा रहा है। ओजोन डे के बारे में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सरकर्दा अर्ज़ियाती साइंसदान और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने आकाशवाणी न्यूज़
क्यों बताया। ओजोन लेयर को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस और बहुत से ऐसे कुछ लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, बहुत से ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ लॉज, ट्रीटीज, पॉलिसीज डेवलप की गई और जिसको हर नेशन स्टेट, हर ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में इन प्रोटोकॉलों को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो उतनी ही मकदार में रहे जितना हमारे लिए, हमारे जमीन के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि हुकूमत खेल कूद के ढांचे को वसअत देने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। हल्का खानियार, रडपोरा और गनी मेमोरियल स्पोर्ट्स स्टेडियम का दौरा करने के मौके पर उन्होंने इन स्टेडियमों में सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले पर बेइत्मीनानी का इजहार करते हुए इस एक्ट को सिरे से ही कलादम करार देने की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के सिलसिले में प्रदेश बीजेपी के सदर सत शर्मा ने पार्टी के तर्जुमान और शायर बलबीर राम रतन की तसनीफ करदा शायरी मोदी युग को इजरा किया। नज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अहम हुसूलियाबियों और बहबूदी स्कीमों को उजागर किया गया है। इसी दौरान ऑल जम्मू एंड कश्मीर बैग एसोसिएशन ने जम्मू में सत शर्मा से मुलाकात करके उनसे स्कूल बैग्स पर जीएसटी पर नजरसानी कराने की इस्तदा की है। बीजेपी के महाराष्ट्र यूनिट की जानिब से जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट को सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इमदादी सामान की एक खेप मौसूल हुई है। सदर रविंदर चौहान की लीडरशिप में ट्रकों में लोड की गई ये खेप आज जम्मू पहुंच गई, जिसे सत शर्मा ने वसूल किया। दरियासना प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल उनकी सालगिरह के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में कल से 19 सितंबर तक क्लाइमेट मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से मुतालिक 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के बारे में यूनिवर्सिटी में डिवीजन ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के सरबराह और कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल अहमद बट ने हमारे नुमाइंदे सुहेल बट के साथ बात करते हुए कहा, इस ट्रेनिंग का मकसद जो ये दोहरा चैलेंज इस वक्त है क्लाइमेट मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि दोनों एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री सेक्टर्स, दोनों सेक्टर्स का कलीदी और अहम रोल है। जहां तक लैंड यूज का ताल्लुक है, कार्बन डायनेमिक्स का ताल्लुक है या इकोसिस्टम हेल्थ का ताल्लुक है। मरकजी हुकूमत ने अवामी मफाद में कई चीज़ों और खदमात पर आयद जीएसटी की शरहों में माकूलियत लाई है। जीएसटी इस्लाहात के कुछ अहम निकात यूँ हैं। कीमियाई खादों पर जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। काबिल तजदीद तवानाई में काम आने वाली मसनूआत और उनके पुर्जाजात का जीएसटी भी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने भारतीय फजाइया और दीगर सिविल एजेंसियों के साथ मिलकर रियासी जिले के शहरी गांवों के बाशिंदों तक जरूरी खाने की अशिया पहुंचाई है। इस कदम से फौज और अवाम के बीच एतमाद की गहरी अक्कासी होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज देहरादून में एप्पल और इन्फोसिस की मुआवनत वाले एआई के मरकजी इम्तियाज और iOS डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि हुनरमंदी और इख्तरा का ये मरकज हिमालयाई खित्ते में मुस्तकबिल में लर्निंग के एक अहम इदारे के तौर पर उभरेगा। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मोहसिन कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सिलसिले में जारी तकरीब के तहत कामली मंजिल ज़कूरा श्रीनगर में आज एक रूह परवर मजलिस मुनक़द हुई। मारूफ दीनी आलिम सईद इफ्तिखार अहमद कामली की सदारत में आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद ने दुरूद व सलाम की सूरत में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना नजराना अक़ीदत पेश किया। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत
29.5 डिग्री, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुआ आफ्ताब सुबह 6:15 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:34 पर होगा। खास खबरों पर फिर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मवासलाती खिदमात के दायरे को वसी करने पर दिया जोर। सड़क, शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बहाली के सिलसिले में इक़दामात का लिया जायजा। मरकजी वजीर दाखिला का मुनशियात के स्मगलरों को भारतीय कवानीन के दायरे में लाने पर जोर। ड्रग फ्री इंडिया मुहिम आज इख्तिताम पजीर। और सेहत और समाजी बहबूद की वजीर ने कोलगाम में बिजली और जल शक्ति के वजीर ने हवाकदल में लिया पीने के पानी की सप्लाई का जायजा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।